ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے میرا ضمیر کبھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ فلسطین کے معاملے پر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ 80 کی دہائی میں لاسانی سیاست نہ ہوتی تو کراچی ترقی کرتا۔ متحدہ بانی نے کراچی میں بہت تباہی مچائی۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، جس کے نقصان سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیشنل پارک ایریا میں سرکاری اراضی پر قبضے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سی ڈی اے اور میئر اسلام آباد کو کل طلب کر لیا۔ ایئر پاور سینٹر آف ایکسیلنس میں 53ویں کمبیٹ کمانڈر کورس کی گریجویشن تقریب کا انعقاد۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ سندھ کے شہر سکھر کے نواحی علاقے پنو آکل میں کینٹ تھانے کی حدود میں گاؤں میں ایک ہی گھر کے 9 افراد کو گھر کے ہی فرد نے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ملزم کی بیوی، 4 بچے اور 4 خواتین شامل ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری سرکاری نرخنامے میں 14 اشیاء خرد کی سینچریاں، جبکہ ادرک 480 روپے کلو، زندہ مرغی 125 کے بجائے 150، مرغی کا گوشت 181 روپے کے بجائے 200 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری نرخنامہ عوام کے لیے مذاق بن گیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے مساجد اور مزارات میں فلم اور ڈرامے کی شوٹنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس ضمن میں محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے قواعد و ضوابط کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محکمہ اوقاف کی زیر سرپرستی مزارات اور مساجد میں کسی بھی خاتون پر کوئی بھی سین عکس بند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں کمی، فعال مریضوں کی تعداد صرف 12,116 رہ گئی۔ 24 گھنٹوں میں 613 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی اور 11 مریض جاں بحق ہوئے۔ NCOC کے مطابق کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 2,90,445 تک جا پہنچی۔ مجموعی اموات کی تعداد 6,201 ہو گئی۔ بھارت میں ایک ہی دن میں کرونا کے 64,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے۔ بھارت کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر بھارت میں کرونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مالی میں کرپشن اور بدترین سیکیورٹی صورتحال کے خلاف جاری مظاہروں کے بعد فوج نے مداخلت کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فوج کی جانب سے گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد ہی مالی کے صدر ابراہیم ابوبکر کیٹا نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے حکومت تحلیل کر دی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جمعے سے کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ ٹیم کی قیادت جو روٹ کریں گے، جبکہ قومی ٹیم اظہر علی کی قیادت میں میدان میں اترے گی۔ دوسرا ٹیسٹ میچ بارش کے باعث ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ السلام علیکم، JNN نیوز اسٹوڈیو میں ہوں نوشین طارق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔
छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सऊदी अरब के साथ खराब ताल्लुकात की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। फ़लस्तीन के बारे में हमने अल्लाह को जवाब देना है। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के मसाइल को देखता हूँ तो तकलीफ होती है। 80 की दिहाई में लासानी सियासत ना होती तो कराची तरक्की करता। मुत्तहदा बानी ने कराची में बहुत तबाही मचाई। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के मुल्की मईशत पर मनफी असरात ख़त्म करने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। माशी तरक्की के लिए नौजवानों को शराकतदार बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने मुलाकात की। इस दौरान कामयाब जवान प्रोग्राम के ताज़ा तरीन अदाद शुमार पर ब्रीफिंग दी गई। प्रोग्राम के तहत नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल तेज़ करने पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि चंद दिनों में 30,000 से ज़ायद नौजवानों ने रकम के हसूल के लिए दरख्वास्तें दी। नौजवानों की सहूलत के लिए 21 बैंक रकम की तकसीम का अमल मुकम्मल करेंगे। अब तक 1 अरब रुपये की रकम नौजवानों में तकसीम की जा चुकी है। मज़ीद 53 अरब रुपए से ज़ायद रकम के हसूल की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि रकम की तकसीम का अमल मज़ीद तेज़ और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। प्रोग्राम के दौरान रकम की तकसीम के अमल पर मुकम्मल नज़र रखेंगे। शफाफियत और मेरिट पर किसी सतह पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। इंसानियत के आलमी दिन के मौके पर एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि आलमी बरादरी को 1 साल से जारी खौफनाक फौजी मुहासरे को ख़त्म कराने और कश्मीरी अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि हम इंसानी बुनियादों पर हंगामी सूरत हाल की बेहतरी के लिए तजवीराती सोच अपनाने की ज़रूरत है। तनाज़ात से बचने और दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का आयादा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने में इंसानी हकूक़ के कारकुनों की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों, मदद फराहम करने और तनाज़ात और हंगामी और नागहानी सूरत हाल से मुतासरा लोगों को महफूज रखने को खराज अकीदत पेश करते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की बतौर चेयरमैन PTDC बोर्ड तैनाती और मुलाजमीन की बरतरफियों के खिलाफ केसेस पर वफाक को जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने केसेस की समाअत करते हुए वफाक को जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ अमूमी तौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में पटिशनर की तरफ से इल्तवा नहीं होता। पुलिस, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर और वफाक हुकूमत केसेस के जवाब देने में ताख़ीर करती है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील हाफिज अरफात ने कहा कि जिन लोगों ने मुल्क को तारुफ कराया, आज उन पर ही इदारे की तबाही का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोविड का कहकर 28 से 30 साल की सर्विस वालों को बरतरफ कर दिया गया। अदालत ने 8 सितंबर को वफाक से दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने राजा बाजार रावलपिंडी की पनाहगाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने पनाहगाह में मुकीम अफराद से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और रावलपिंडी में एक और पनाहगाह बनाने का ऐलान भी किया। उनके दौरे की मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने राजा बाजार रावलपिंडी की पनाहगाह का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने पनाहगाह में मुकीम अफराद से बातचीत की और इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया और इंतजामात के हवाले से जायजा भी लिया। पनाहगाह में रोजाना की बुनियाद पर 50 अफराद जबकि मजमूई तौर पर 64,000 से ज्यादा अफराद क़याम कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क़याम तआम के बारे में इंतजामात को बेहतर और मसाली बनाने की हदायत भी जारी की। वज़ीर आला पंजाब ने मुसाफिरों से बातचीत की और खाने के मेयार के बारे में दरियाफ्त किया और रावलपिंडी में एक और पनाहगाह बनाने का भी ऐलान किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ अल हसन चौहान, अवामी नुमाइंदे और मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक थे। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, रावलपिंडी।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा है कि इन 2 सालों में जमहूरियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान हुकूमत में करप्शन के मुताबिक पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदन आरिफ की इस रिपोर्ट में। इमरान खान ने मुल्क की तारीख की बदतरीन मैशियत दी, बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन की शराब बढ़ी। उनका कहना था कि इन 2 सालों में जमहूरियत नाकाम, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, बुलंदियों को छूती बेरोजगारी, जबकि इमरान खान ने मुल्क की तारीख की बदतरीन मैशियत दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर तबसरा करते हुए कहा कि इक़्तिदार के 2 सालों में नाकाम खारजा पॉलिसी दी गई। कश्मीर से सऊदी अरब तक इमरान खान की खारजा पॉलिसी नाकाम रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जमहूरियत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गयी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान हुकूमत में करप्शन में पहले से जायद इजाफा हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दुनिया में जब भी तब्दीली आई 1-2 साल में नहीं आई। मदीने की रियासत को बनाने में वक्त लगता है। मेरी हुकूमत का पहला साल बहुत मुश्किल था। पहले साल IMF प्रोग्राम में चले गए, मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। रवां साल फर्क नजर आएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से चीजों में ताखीर हुई। पंजाब में हमारी पार्टी पहली बार इक़्तिदार में आई और हमारी पार्टी को वफाक और पंजाब में इक़्तिदार का तजुर्बा नहीं था। वजीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार के बारे में कोई कुछ और कोई कुछ कहता है। उस्मान बुज़दार के बारे में IBC एक इल्जाम चेक करता हूँ। उस्मान बुज़दार पर शराब लाइसेंस का केस मजाक है। हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को 3 बड़े चैलेंजेस थे, एनर्जी, कर्जे और पेंशन। माजी की हुकूमतों ने इदारों में सियासी बुनियादों पर जरूरत से जायद भर्तियाँ की। बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन की मद में चला जाता है। वजीर आजम ने तस्लीम किया कि इनकी हुकूमत पायलट्स के मामले को बेहतर अंदाज में हैंडल नहीं कर सकी। मुल्क में जारी एहतसाब के अमल के बारे में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर एहतसाब से पीछे हट गए तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। FIA को मजबूत कर रहे हैं, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी से मुहर्रम उल हराम से मुतालिक GNA न्यूज़ के नुमाइंदा अदनान बरी ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। वाक़या करबला के हवाले से और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से इस वक्त आपस में जो बामी इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत है उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसमें मेरी गुजारिश है तमाम उलमा को और मुहिब्बीन अहले बैत को, मुहिब्बीन सहाबा को, इन मुक़द्दस हस्तियों की निस्बत से इस मुल्क में जो हमें ज़रूरत है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़िज़ा बरकरार रखने की है और माहौल बेहतर बनाने की है। और जो यहाँ पर एक कोशिश की जा रही पाकिस्तान को इंतशार में, इफ्तिराक में और फसाद में पिलाने का, इसका हमें तदारुक करना चाहिए और उलमा और मशाइख को उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी, अपोजिशन जमातों के किरदार और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बारे में जमात इस्लामी के मौक़िफ़ के हवाले से सेनेटर सिराजुल हक ने GNA न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा, बिल्कुल हुकूमत ने 2 साल तो गुजार लिया, लेकिन कारकर्दगी कैसी रही उस पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद जो है वो होती रही है। इस में साथ अमीर जमात इस्लामी सरदार साहब मौजूद है, उसे जानते हैं। अच्छा सरदार साहब, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जो 2 साल कारकर्दगी है इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो 2 साल जिसमें 730 दिन होते हैं, इस हुकूमत ने आवाम के ज़ाया किए, इसलिए कि 730 दिनों में कोई एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आम आदमी को फ़ायदा हुआ हो। आम आदमी क्या चाहता है कि महंगाई ना हो, रोटी सस्ती हो, दाल मिले, घी और चावल मिले, पेट्रोल और गैस और बिजली मुहैया हो, और बीमार हो जाए तो दवाई ऐसी हो जिसको ख़रीद सकें। सरदार साहब, इस तरह आपने फरमाया कि 730 दिन इस हुकूमत ने ज़ाया किए, तो क्या आप नहीं समझते कि अपोजिशन का इसमें बहुत बड़ा किरदार है? सिवाय मौलाना फजल-उर-रहमान के एक आज़ादी मार्च के, उसके अलावा अपोजिशन ने कुछ नहीं किया हो, और उसमें भी अपोजिशन ने जो है मौलाना फजल-उर-रहमान को तनहा छोड़ा। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, तो पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत भी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमतों का एक तसलसल है, उस निज़ाम का एक तसलसल है।
اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو ہم نے پہلے دن سے مشورہ دیا تھا کہ آپ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ساتھ لیں گے یا سہارا دیں گے تو یہ تو پھر وہ پرانا نظام مسلط کرنا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک کلیئر راستہ ہے اور وہ یہ کہ عوام اس ملک میں اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کرے. سراج صاحب، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے، آل پارٹی کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے؟ میرا ایجنڈا نیب نہیں ہے. میرا ایجنڈا ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے دانلی سے پاک الیکشن کیسے یقینی ہو جائے. اور اس ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ عوام ووٹ دیتے ہیں اور مرضی کے مطابق پھر وہ رزلٹ نہیں نکل آتا، اور الیکشن سے پہلے ہی صوبے تقسیم کیے جاتے ہیں، حلقے تقسیم کیے جاتے ہیں. تو اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ واقعی یہاں جمہوریت مستحکم ہو تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے انعقاد پر آپس میں متفق ہو، اور اس پہ ہم حکومت سے بھی بات کر لیں. اس لیے کہ اس الیکشن کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے انعقاد کے بعد اور ہونے کے بعد پھر ہارنے والے رو رہے ہو اور جیتنے والے ہنس رہے ہو اور دانلی اور چوری کے الزامات ہو. یہ کام ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے، یہ فرانس اور جاپان میں نہیں ہے، وہاں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ صحیح الیکشن کا نظام نہیں بن سکا. تو اپوزیشن کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس پہ کام کرے. بہت شکریہ. جی بالکل، کہتے ہمارے ساتھ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن اگر صاف اور شفاف انتخابات کی بات کرتی ہے، اگر اپوزیشن کا جو آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا اگر صاف ہو تو پھر ہم ضرور اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. لیکن ہمیں بتایا جائے کہ اپوزیشن اگر آل پارٹیز کانفرنس بلاتی ہے تو وہ کس مقصد سے بلاتی ہے؟ جی. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری سرکاری نقد میں 14 اشیاء خرد کی سینچریاں، جبکہ ادرک 480 روپے کلو، زندہ مرغی 125 کے بجائے 150 اور مرغی کا گوشت 181 روپے کی بجائے 200 روپے فروخت ہوا. سرکاری نقد نامہ عوام کے لیے مذاق بن گیا. حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو سستی چیزوں کی فراہمی کے لیے جاری کیے جانے والے سرکاری نقد میں 13 اشیاء کی قیمتیں غائب، جبکہ 14 اشیاء خوردونوش کی سینچریاں مکمل کر لیں. ادرک 480 روپے، زندہ مرغی 125، جبکہ مرغی کا گوشت 181 کے بجائے 200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. مارکیٹ کمیٹی راولپنڈی کی جانب سے جاری سرکاری لسٹوں کو ٹھیکے پر دیے جانے کے بعد صرف لسٹوں کی فروخت پر توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ چیک اینڈ بیلنس زیرو ہے. سرکاری نقد نامے کی قیمتوں کے تعین پر عوام اور دکانداروں کے درمیان جھگڑا معمول بن چکا ہے. دکاندار بھی نقد نامے چھپا کر رکھتے ہیں. متحدہ عرب امارات کے بعد افریقی عرب ملک سوڈان بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند نکلا. دونوں ممالک میں امن معاہدہ رواں برس میں ہونے کا امکان ہے. سوڈان کی وزارت خارجہ کے ترجمان حیدر بداوی صدیق نے خرطوم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل سے امن معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں. یہ تعلقات سوڈان کے مفاد میں قائم کیے جائیں گے. ترجمان سوڈانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے حکام کے درمیان رابطے سے انکار نہیں ہے. امن معاہدہ رواں برس یا اگلے برس کے اوائل تک ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لیے اسرائیل سے دعوت جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں. معاہدے سے اسرائیل اور سوڈان دونوں مستفید ہوں گے. اور یہاں خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ جمعے سے ساؤتھ میپٹن میں کھیلا جائے گا. دوسرا ٹیسٹ میچ بارش کے باعث ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا تھا. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جمعے سے ساؤتھ میپٹن میں کھیلا جائے گا. انگلینڈ ٹیم کی قیادت جو روٹ کریں گے، جبکہ قومی ٹیم اظہر علی کی قیادت میں میدان میں اترے گی. دوسرا ٹیسٹ میچ بارش کے باعث ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا تھا. انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پنو آکل میں جنونی شخص نے بیوی، بچیوں، بھابھی اور بھتیجیوں سمیت گھر کے 11 افراد کو قتل کر دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال روانہ کر دی گئی ہیں.
रुख करेंगे कोहाट का, जहां कस्टम हुकाम की जानिब से लाखों रुपए की मालियत की मुज़र सेहत अशिया और आतिशगीर मादा जलाने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें एडिशनल कलेक्टर कस्टम, AC कस्टम समेत आला अफसरान ने शिरकत की। इस वक्त नुमाइंदा JNN उस्मान पराचा वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट टनल चेक पोस्ट के पास। यहाँ पर कस्टम हुकाम की जानिब से मुज़र सेहत अशिया और फायर क्रैकर्स को जलाने की तकरीब मुनक्किद की गई थी। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कलेक्टर साजिद खान साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो आज की इस तकरीब के बारे में और ये जो चीज़ें उन्होंने जलाई हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। ये जो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस है ये हम कर रहे थे 26 जनवरी को, जो इंटरनेशनल कस्टम्स डे होता है, लेकिन कोरोना की वजह से हम इसको नहीं कर पाए और अभी हम इसको अगस्त में करवा रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसमें बैंड आइटम्स है जो इंडिया से स्मगल्ड होते हैं, और इसमें वो चीज़ें हैं जो नॉट फिट फॉर कंजम्पशन होती है, और ये कंजम्पशन के लिए जो फिट नहीं होती इसके लिए लेबॉरेटरी की जाती है, जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लेबॉरेटरी है, जहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि असिस्टेंट कलेक्टर साजिद खान साहब बता रहे थे कि जो मुज़र सेहत अशियाएँ जो कि कुछ इंडिया से स्मगल होकर आई थी और कुछ ऐसी कुछ मुज़र सेहत अशिया थी जो कि लेबॉरेटरी में टेस्ट के बाद उनके जो नुकसान थे वो वाज़ेह नज़र आ रहे थे, तो इस वजह से ये उनको जलाने की आज तकरीब मुनक्किद की गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि महकमा तालीम खैर पख्तूनख्वा ने तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए रहनुमा असूल जारी कर दिए। खैर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए महकमा तालीम के मुताबिक इदारे के गेट पर बुखार चेक करने का इंतज़ाम होगा और 37.3 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर वाले तलबा और असासा को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होगी। तलबा और असासा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूलों में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। स्कूल में असम्बली और झमघट्टा लगाने से इज्तनाब किया जाएगा। कोरोना की अलामत वाले तलबा को 7 दिन छुट्टी दी जाएगी और तलबा को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में पूरी क्लास को 14 दिन छुट्टी दी जाएगी। कसूर में न जमीन फटी न आसमान गिरा, बाअसर वडेरों का राज है। नवाही गांव हुसैन खानवाल में बाअसर जमींदार ने चचा भतीजा पर कुत्ते छोड़ दिए, जिसके नतीजे में मासूम बच्चा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कसूर में 11 साल अब्दुर्रहमान पर बाअसर जमींदार ने कुत्ता छोड़ डाला। कुत्ते ने बच्चे को नोच डाला। कुत्ते ने बच्चे को बाजू और टांगों पर काटा। बच्चे को बचाने की कोशिश में बाअसर जमींदारों ने बच्चे के चचा पर भी तशद्दुद किया। कुत्ते के काटने से जख्मी बच्चे को DHQ कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे के चचा ने मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस थाना गंडा सिंह को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। कसूर में कोरोना का डर न SOPs का ख्याल। वाबडा यूनियन के इलेक्शन के बाद हिफाजती इकदामात की धज्जियां बिखेर दी गईं। तफसीलात के मुताबिक कसूर में वाबडा यूनियन के इलेक्शन के बाद कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गईं। मुलाजमीन ढोल की थाप पर रक्स करते रहे और ओहदेदारों पर नोट भी निछावर करते रहे। वाबडा यूनियन के इलेक्शन में सैकड़ों अफराद ने इलेक्शन जीतने के बाद जश्न मनाया। बगैर मास्क के सैकड़ों मुलाजमीन जीतने वाले उम्मीदवारों को कंधों पर उठाकर भंगड़े डालते रहे। इलेक्शन की जीत के जश्न में बुजुर्ग मुलाजमीन भी कसीर तादाद में शरीक हुए। ओहदेदारों मुलाजमीन की जानिब से न मास्क पहना गया और न ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। राजनपुर उमरकोट सब्जानी में महकमा इनहार की अजीब गरीब पुर्तियां जारी हैं। महकमा इनहार की मुद्दत में पानी चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जबकि मुल्जिम 7 साल कबल फोत हो चुका है। महकमा इनहार का अनोखा कारनामा, 7 साल कबल फोत होने वाले शाहनवाज पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। शाहनवाज सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और नहर पर पाइप लगाकर पानी चोरी कर रहा था। SDO की मुद्दत में थाना उमरकोट में मुकदमा दर्ज करवाया गया, मगर शाहनवाज नामी शख्स 7 साल कबल वफात पा चुका है। इससे महकमे की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। राजनपुर तर्जुमान पंजाब हुकूमत अल्लाह बख्श कोराई ने कोट मिठन का दौरा किया। उन्होंने दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और मज़ार पर चादर भी चढ़ाई। पंजाब हुकूमत ने तर्जुमान अल्लाह बख्श
कोराई ने कोट मिठन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी भी दी और मज़ार पर चादर भी चढ़ाई। उन्होंने पीर ऑफ कोट मिठन ख्वाजा गुलाम फरीद को रेजा की अहलिया की वफात पर ताज़ियत भी की। टाउन कमेटी में उन्होंने टाइगर फोर्स के जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। रुख करेंगे बडग्राम का, जहां वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिंस मोहम्मद नवाज खान अलाई और मेंबर सूबाई असम्बली इंजीनियर जुबैर खान अलाई ने थाकोट ग्रिड स्टेशन से अपग्रेड करने और थाकोट ग्रिड स्टेशन से अलाई के लिए नए फीडर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं बडग्राम से सैयद आमिर जहान शरासी। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी MNA प्रिंस मोहम्मद नवाज खान अलाई और मेंबर सूबाई असम्बली व चेयरमैन डेडिक कमेटी इंजीनियर जुबैर खान अलाई ने ताकोट ग्रिड स्टेशन को 33 kV से 132 kV में अपग्रेड करने और ताकोट ग्रिड स्टेशन से तहसील अलाई के लिए नए फीडर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस सिलसिले में ताकोट ग्रिड स्टेशन में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील अलाई और बडग्राम के इलाकाई मुशरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MNA प्रिंस मोहम्मद नवाज खान अलाई का कहना था कि आज ताकोट के स्टेशन को अपग्रेड करके अपने हलके के अवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया, जिससे अब बिजली की लोड शेडिंग का मसला एक हद तक कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द ताकोट के स्टेशन से इलाके देशान, चांजल और कारगड़ी के लिए फेडर 2 बिजली की सप्लाई शुरू कर देंगे, जिससे जिला भर में बिजली लोड शेडिंग में खातिर ख्वाह कमी आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अलाई खोल डैम से ताकोट के स्टेशन को बिजली दिलवाना मेरा मिशन है। इस हवाले से वापडा के आला हुकाम से मुलाकातें कर चुका हूँ, ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा। तहसील अलाई जो था वो पहले शंगला के साथ या चकेसर के साथ हम होते थे, तो ये पहली बार अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया और अलाई के लिए अलग फीडर आज कर दिया है। तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से एक वोल्टेज और लोड शेडिंग में काफ़ी कमी वाक़ई होगी और जो हमारी बिलिंग सिस्टम है उसमें भी बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। तो ये अलाई के लिए आज एक और नाकाबिल फरामोश दिन है और मैं पूरे अलाई वालों को मुबारकबाद देता हूँ। प्रिंस मोहम्मद नवाज खान अलाई ने कहा कि ताकोट के अवाम ने इलेक्शन में हम पर जिस एतमाद का इजहार किया है, हम उनके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और यूनियन कौंसिल ताकोट के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अब्दुल फनास के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज़ बडग्राम। विफाकी थाना सफदराबाद के ASI ने रिश्वत लेने में और मुल्जिमान का साथ देने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20,000 रिश्वत लेकर भी मजलूम का साथ देने से इनकार किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक फहमीदा बीबी के ससुराल वालों ने इस पर बेइंतहा तशद्दुद किया, जिस पर फहमीदा बीबी ने और इसका बूढ़ा बाप मेडिकल लेकर इंसाफ के लिए थाना सफदराबाद आए। वहां मौजूद ASI ने इनसे 20,000 की डिमांड की। बूढ़े बाप ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 20,000 भी दे दिए, मगर ASI ने 20,000 लेने के बावजूद मुल्जिमान का साथ देना शुरू कर दिया, जिस पर बूढ़ा बाप और इसकी बेटी और बीवी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने DPO शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस का कहना था कि हम पर प्रेशर बहुत है, आप उनसे सुलह कर लो वरना हम आपकी FIR खारिज कर देंगे। मजलूमों का कहना है कि खुदा के लिए हमें इंसाफ दिलाया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।